mine, we don't require the picture. Yes. So ऑन पेज का जो सेक्शंस हम लोग कवर किए थे और दो, इससे बेसिकली टू पार्ट, ऑन पेज का दो पार्ट में मैं यूजुअली डिवाइड कर देता हूँ पूरा क्लास को। एक तो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम लोग कोडिंग पे मैनुअली हम लोग कर सकते हैं हम लोग के साइट के बेसिस पे। अगर वो वर्डप्रेस है सो यू कैन गो हेड फॉर द योस्ट एसईओ एंड वी कैन इम्प्लीमेंट ऑन इट, राइट। एंड उसका भी एक वीडियोस है कैसे इम्प्लीमेंट होता है। लास्ट क्लास में एक किया था तो आई विल शेयर यू, सो आप वो चेक कर पाओ। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली क्या होता है ना, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। मतलब ये तो डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा हूँ, तो उसका आई विल शेयर फॉर द इनिशियल बेनिफिट्स के लिए इन मास्टर्स बेसिकली देयर इज আচ্ছা এগুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ওখানে সেগুলো মাস্টার্সে ইমপ্লিমেন্টেশনে থাকে, মানে দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। ভিডিওটা যেটা আছে সেটা এটা মাস্টার্সেরই ভিডিওস আছে একটা ইনিশিয়াল লেভেলে, তো আমি ওটা তোমাকে ইয়ে করে দিতে পারবো আর কি, আমি দিয়ে দিয়ে দিতে পারবো। তো এটা গত ক্লাসে ছিল হয়তো কোনো একটা। এটা দিস লাইক এখানে দেখো, এটা পার্টিকুলার যেমন অন পেজ ডকুমেন্টেশন রেডি হচ্ছে, রেডি হয়েছে, ঠিক আছে। রেডি হওয়ার পরে এগুলো দেখো রেডি হচ্ছে, রেডি হওয়ার পর কোথায় কি আছে সেগুলো ডিটেলস ইয়ে হচ্ছে, চেঞ্জেস হচ্ছে। এইবার দেখো এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব, দেখো সাইটে গেলাম, আচ্ছা এটা ওয়ার্ডপ্রেসে হ্যাঁ হয়ে গেছে প্লাগইনসে গেলাম, তারপর দেখো এখানে চেঞ্জেসগুলো করছি। এ দেখো ওর চেঞ্জেস কোথায় করবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দেখানোর পরে ওগুলো, তারপরে ওর যেমন ইমেজ অলটা আছে, ইমেজ অলটা সাজেশন দিয়েছি, ইমেজ অল বা এগুলো এইচ ওয়ান কোথায় আছে কিভাবে ডিটেক্ট করবে, তারপর ডিটেক্ট করে এবার সেটা চেঞ্জ করবে কোথা থেকে, সেগুলো দেখো এখানে সবগুলো, সব ওই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইমেজ এটা ছিল। ইমেজ অল এবার ইমেজের অলটা আমরা এখানটায় এটা দিয়েছি ডাম্বল জিম, এটা এখানে গিয়ে কোথায় গিয়ে চেঞ্জ করবে, জানি না, মানে দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স দুটোর মধ্যে, मास्टर्स এবং এটার মধ্যে। चेंज हाउ टू हाँ चेंज पूरा 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 कवर होता है, तो ये पूरा कवर होके ये सॉल्व करके ये है। তো এটা দিয়ে দিলে তুমি ওটা বুঝতে পারবে যে এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, মানে এটা নর্মালি এটা ডেভেলপাররা থাকে, কিন্তু নর্মালি যখন আমার থাকে নিজস্ব সাইট হয় তখন যতটুকু আমার করা সম্ভব ততটুকু আমি করতে পারি, যেটা আমরা ওখানটায় মাস্টার্সে দেখিয়ে দিই আর কি। আচ্ছা এটা আমার একটা ডকুমেন্টেশন খুব ফার্স্ট ক্লাস তৈরি হয়েছিল, রাইট। এবার এখানটায় আমি একবার রিক্যাপ দিয়ে দিই যাতে করে মনে করতে পারো। অন পেজ ডকুমেন্টেশনের সময় আমি বলেছি যে প্রত্যেকটা পেজের ক্ষেত্রে এই ডকুমেন্টেশন কিন্তু তোমাকে রেডি করতে হবে, মানে এই যে জিনিসটা এতটুকু অবধি দেখিয়েছি না, এটা প্রত্যেকটা পেজের জন্য হবে, মানে এরপরে আমি এখানে শেষ হবে না, এরপরে আমার যে অ্যাবাউট আস পেজ আছে ঠিক একই জিনিসই আমি কপি করব, মানে এতটুকু অবধি করে এরপরে আমি সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আর কি। মানে আমি এখানে হোম টাইটেলে যেটা দিয়েছি এটা অ্যাবাউট আসের পেজে কি হয়ে যাবে, অ্যাবাউট মিডিয়া ওয়ার্কস a digital marketing company in UK or maybe the SEO company in UK, so that is about, তো অ্যাবাউট অ্যাসের ক্ষেত্রে সেখানে অ্যাবাউটের নতুনভাবে করে দিতে হবে অ্যাবাউট অ্যাসের ইনফরমেশন, গট মাই পয়েন্ট। সো এভাবে করে প্রত্যেকটা পেজের জন্য ইউনিক টাইটেল, প্রত্যেকটা ডেসক্রিপশনস এইচ ওয়ান এইচ টু ট্যাক্স, যা যা রেকমেন্ডেশন থাক টেকনিক্যাল আমি এখানে সাজেস্ট করেছিলাম সেগুলো সবগুলোই ওখানে থাকবে প্রত্যেকটা পেজের জন্য, ঠিক আছে। দিস ইজ এ বেসিক। নেক্সট ইজ বেসিক্যালি আমাদের টেকনিক্যাল, যেটা সাইড উইথ টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন আমরা যাই, সেটাতে আমরা কি করি, আমরা দেখবে এখানটায় দুটো তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্ট্যান্ট, লাইক আমরা অন পেজ ডকুমেন্টেশন বানিয়েছিলাম এটা, রাইট, এখানে বানিয়েছিলাম। আচ্ছা এখানটায় আমি ফার্স্ট আসো দেখো रोबोट डॉट टी एक्स टी एंड साइट मैप टेस्ट, ठीक है पीयूष। रोबोट डॉट टी एक्स टी इसमें ना रोबोट डॉट टी एक्स टी है एंड साइट में भी है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, आप कोई भी साइट में जाओगे, मतलब इनका साइट ओपन कर लेते हैं, অভিষেক বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করবে। লাইক
this is the website, and how I'll know that the sites have a robot.txt file or not. This is technical, and that is not for the individual pages. So आपको समझा पा रहा हूँ. फर्स्ट जो फेज मैंने फर्स्ट क्लास का जो ट्रेनिंग लिया था वो इंडिविजुअल हर पेज के लिए सेम काम करना है. अभी जो कर रहे हैं वो एक ही टाइम करना है जो पूरा साइट में इफेक्ट आता है. तो विच इज बेसिकली टेक्निकल फॉर्मेशंस. अभी यहाँ पे आई हैव टू चेक द robot.txt एंड ऑल. अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन डालेंगे, है तो नहीं, ज़रूरत नहीं है. अगर है बट उसमें कुछ चेंजेस रेक्टिफिकेशन चाहिए तो आई विल गिव द कमेंट, अदरवाइज नॉट. टेक्निकल रिपोर्ट में वो नहीं आएगा. नेक्स्ट इज robots.txt. ठीक है सर, robot.txt दे रहे हैं. सो अगर है तो आई कैन सी, लोग द साइट्स हैव अ robot.txt. अगर नहीं था तो इन दैट केसेस इट विल नेवर शोस. अंडरस्टूड? गॉट. यूजुअली वर्डप्रेस वेबसाइट में, ये वर्डप्रेस का साइट है क्योंकि आप देखो WP एडमिन दिखा रहा है. तो इन दिस केस वर्डप्रेस में robot.txt XML बाय डिफॉल्ट मैक्स साइट में रहता है because the plugins we used that helps very randomly. so ये है. আমাদের এই WP অ্যাডমিনের কোনো ক্লাস হবে এখন? না, এটা অ্যাডভান্সে নেই. অ্যাডমিনে যেটা রয়েছে, অ্যাডমিনের এটা তো ইন্টারনাল জিনিস. এবার এটার অ্যাক্সেসটা তোমার না থাকলে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না. মানে এর না ভিতরে এটা মানে যে কোনো আমার একটা অন্য website- স্যাম্পল, হ্যাঁ, অন্য একটা সাইটের উপরে স্যাম্পলের উপরে, এটা ওই মাস্টার্স সেকশনসে আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টে রয়েছে. robot.txt আশা করি বুঝতে পারলে যে কিভাবে করে. আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি এখানে পয়েন্টগুলো দিয়ে দিচ্ছি যেটা অলরেডি আছে, তার জন্য আমি এখানে করছি না. আমি তার জন্য এখন আশা করি বুঝতে পারছো যে ডকুমেंटेशन আর এটা কেন দুটো কানেক্টেড. डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं रहता तो मैं इमीडिएट टेक्निकल यहाँ पे नोट देता, प्लीज़ इंक्लूड. यहाँ पे एक दे देते हैं, हेडलाइंस आएगा robot.txt और यहाँ पे प्लीज़ इंक्लूड बोल के दे देते हैं. क्लियर सर, समझ में आ गया? प्लीज़ इंक्लूड बार. सो अभी है, सो ऑलरेडी यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग्स. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है sitemap.xml. एंड इसका काम क्या होता है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं क्योंकि इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस आ सकता है. robot.txt इज ए टेक्स्ट फाइल. जब सर्वर बेसिकली जब क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बेसिकली बेसिक जो फाइल है वो टीएक्सटी फाइल है. टीएक्सटी फाइल को पहले क्रॉल करता है वो. तो टीएक्सटी फाइल में हम लोग वो इंस्ट्रक्शन डालते हैं robot.txt में कि रोबोट्स जो है, मतलब सर्च इंजन क्रॉलर जो है, क्रॉलर के लिए एक इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं टेक्निकली कि कौन सा पेज वो इंडेक्स करे, कौन सा पेज इंडेक्स मत करे. Because it's my website. Yes, it's your, yes, there's a fantastic word. It's your website, is your wish कि कौन सा पेज आप यूजर को देखने दोगे, कौन सा पेज आप देखने नहीं दोगे. There is a lot of cases. आप क्या होता है, होता है कि आपका एक ओल्ड साइट है, ठीक है, आपने नया शिफ्ट किया, तो पुराना साइट भी आप सर्वर में ना ओल्ड बोल के एक फोल्डर बना के, नहीं तो बैकअप बोल के एक फोल्डर बना के आप रख देते हो. अगर आप robot.txt उसको ब्लॉक नहीं करोगे तो वो भी आपको दिखेगा. तो देयर इज सम केसेस डुप्लीकेसी का एक सेक्शंस हो सकता है. सेकंड बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है बिकॉज पीपल्स आर गेटिंग योर ओल्ड साइट्स एंड ऑल. So that is particular दो happen. different website है. दो डिफरेंट, नो दो इट्स नॉट अ डिफरेंट वेबसाइट. क्या होता है कि आपका मान लो कि अभी के ये साइट है, फॉर एग्जांपल ये इनका अभी का जो साइट है, ठीक है, तो वो नया डिजाइन कर रहा है, नया डेवलप कर रहा है, तो पुराना को Same हम site लोग को ही सेम design साइट कर को रहे हैं. हम लोग कॉपी करके पूरा फाइल्स एंड फोल्डर करके उसको एक ओल्ड फोल्डर में डाल देते हैं. मैं एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ. मान लो मेरा जो साइट का बैकअप है, दिस इज अ बैकअप एंड मे बी देखो बैकअप. सो ऐसा करके हम लोग बैकअप रख देते हैं, मे बी computinfotech.com. So तो ये यहाँ पे पूरा बैकअप है. अब हाँ, ये पूरा website का बैकअप सारा है. information हाँ, यहाँ पे है. तो यहाँ पे मान लो कि ओल्ड बोल के कुछ एक सेक्शंस रहेगा जहाँ पे मेरा मान लो कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा को मैं ऐसा करके कॉपी करके इसमें Old में ओल्ड रख में डाल दे रहा हूँ और नया जो साइट डिजाइन किया है उसको अपलोड कर रहा हूँ जो अभी लाइव है. तो ये इसी को हम लोग को ब्लॉक करना चाहिए. मतलब इसी जो ओल्ड फोल्डर बन रहा है, जो भी ओल्ड हो, बैकअप हो, जो नाम आप दोगे उसी को अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो इट्स विल आल्सो क्रॉल, गूगल विल क्रॉल एंड ट्रीट इज, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया. पहले था mediaworks.co.uk/services/SEO, SEO कंपनी और मे बी द SEO सर्विसेज. वो अभी पाथ क्या चेंज होगा, वो पाथ चेंज हो जाएगा mediaworks.co.uk/
ओल्ड फाइल्स स्लैश एसीओ, तो पाथ दोनों चेंज हो गया, और पुराना पाथ में नया साइट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दोनों का पाथ चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो जाएगा ना। तो इन दैट केसेस बेसिकली हम लोग को उसको रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। इसके अलावा भी बहुत सारा केसेस में क्या होता है कि लाइक योर साइट्स हैव अ बेसिकली सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लाइक योर ईमेल फोल्डर, like your admin folder. So if you are open to crawl an index, sometimes it's a very easy to hack or something, right? So to protect that, you have to save yourselves. Understood? नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोगों का नेक्स्ट एक्टिविटीज हम लोग जो करते हैं वो पर्टिकुलर robot.txt से वी यूजुअली प्रोटेक्ट द डिफरेंट फाइल्स फोल्डर्स हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्च इंजन क्रॉलर के हिसाब से। दिस इज द बेसिकली robot.txt व्हाट अबाउट, ठीक है। नाउ सेकेंडरी सेक्शंस इज बेसिकली मैंने sitemap.xml. Sitemap.xml is a file where through which basically you will understood usually it's not visually good for the end users and end users देखता भी नहीं है वो, क्योंकि sitemap.xml करके कोई नहीं जाता है। तो sitemap.xml ये सर्च इंजन क्रॉलर के लिए दिया जाता है ताकि सर्च इंजन क्रॉलर आपके उस पेज में आके जो भी जितना सारा पेजेस है आपका साइट में, जितना सारा फोल्डर है उसका एक पाथ मिल जाता है। जैसे पाथ मिल जाता है क्या होता है मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लाइव sitemap.xml। STMap सॉरी तो क्या होगा, लाइक यू कैन सी दिस इज ऑल द पेज पाथ इज देयर, समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर जो जब गूगल यहाँ पे इंडेक्स करेगा तब क्या देगा, यहाँ पे देखो पेज sitemap.xml अलग अलग करके ये बना दिया गया है। तो जब यहाँ पे जाके देखो सारा का सारा पेजेस कब उन्होंने लास्ट मॉडिफाई किया, कितना इमेजेस है, सारा डिटेल्स यहाँ पे है। तो द सर्च इंजन क्रॉलर इजीली क्रॉल एंड इंडेक्स, तो ये इंडेक्स के लिए आपका साइट इंडेक्स होने के लिए ये बहुत 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 हेल्पफुल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये sitemap.xml अगर होता है तो वेबमास्टर में जाके भी वो सबमिट करके आपका साइट को आप इजीली इंडेक्स करा सकते हो। जो पहले अगर 2002, 3, 4 तक अगर पकड़ लेते हैं तो इसी काम के लिए साइट इंडेक्स के लिए भी लोग अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, 10,000 15,000 ले लेते थे पहले, जस्ट गूगल में मेरा साइट को दिखाने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, जो अभी पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन आराम से वेबमास्टर थ्रू से यू कैन इंडेक्स इट, ठीक है। सो दैट इज द अनदर बेनिफिट्स ऑफ इट। सो इसमें ऑलरेडी है, सो वी विल नॉट पुट इट एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे इनलाइन CSS JSS इसका सेक्शंस आपका है, तो वो मेरा डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। Another thing is basically बहुत important things है canonical issue. What is called canonical issue? Canonical issues is basically issues when the search engine crawler basically crawl your site. In that cases, when they enter into your server, they got a two prominent common folder. One is a public underscore HTML folder থাকে, যে কোনো সার্ভারে ঢুকলে দুটো ফোল্ডার থাকে, একটা ফোল্ডার হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস্কোর HTML, আরেকটা ফোল্ডার হচ্ছে www ফোল্ডার। অবশ্যই বুঝতে পারছো তো, যখন তুমি সার্ভারে কোনো কিছু আপলোড করবে তখন দুটো ফোল্ডার থাকে, একটা পাবলিক আন্ডারস্কোর HTML আর একটা হচ্ছে www फोल्डर। जब कोई भी साइट आप अपलोड करते हो, कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो, तो तब क्या होता है, तब पर्टिकुलर बेसिकली आपको दो फोल्डर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग का साइट का क्या डेट चेंज करना पड़ेगा, थिंक सो, देखते हैं अगर होता है तो लाइव देखा देते हैं। डेट चेंज करना पड़ेगा, फाइन। सो इफ वी वांट टू चेंज इट, सो हम लोगों को सर्वर में जाके उसको चेंज करना है। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML एज वेल एज यू कैन सी दैट द एक फोल्डर होएगा www फोल्डर, उसी फोल्डर में जाके हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेसिकली जो भी हम लोग अपलोड करते हैं हम लोग पब्लिक अंडरस्कोर HTML अपलोड करते हैं, और जो भी अपलोड करते हैं इमीडिएटली www में वो क्लोन हो जाता है। तो कोई भी साइट जब हम लोग लॉन्च करते हैं उसका दो फॉर्मेशन आता है, एक www देके एक विदाउट www टेक्निकली।
तो क्या होता है सर्वर के लिए जब सर्च इंजन क्रॉलर कॉल कर रहा है, सर्वर के लिए ये कॉमन फैक्टर है, अब सर्च इंजन जब क्रॉल कर रहा है वो दोनों साइड को आइडेंटिकल मानते हैं कि दोनों साइड अलग अलग साइड है, तब उनको समझाने के लिए हम लोगों को वो इश्यूज सॉल्व कर देना पड़ता है। हम लोगों को वही यूजुअली गाइड अगर नहीं रहता है तो टेक्निकली यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि भैया आपका साइड में कैनोनिकल इशू है, कैसे समझोगे कि कैनोनिकल इशू है कि नहीं। कोई भी यूआरएल, ये यूआरएल ओपन हो रहा है राइट, जस्ट आप यहाँ पे जाके इसको www हटा दो, HTTPS रहेगा। हाँ वो रह सकता है, नहीं भी रह सकता, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट, HTTP इज अ कॉमन, ठीक है। अगर हम लोग दे रहे, देखो ये क्या हुआ, ये www redirect हो गया, दैट मीन्स दिस साइट हैज अ नो कैनोनिकल इश्यूज, ऐसा कैनोनिकल इश्यूज सॉल्व, ठीक है। नहीं रहता तो हम लोग रिकमेंड करते हैं प्लीज रिडायरेक्ट, यहाँ पे दे देते हैं प्लीज रिडायरेक्ट फ्रॉम मीडिया, क्या है मीडिया मीडिया वर्क्स .co.uk to www.mediaworks.co.uk, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली थिंग्स, प्लीज 301 रिडायरेक्ट, यहाँ पे और भी परमानेंट कर दे सकते हो, 301 परमानेंट रिडायरेक्ट, तो विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक ये परमानेंट होना चाहिए। 301 मैंने क्या दी, ये कोड है टेक्निकल, जो 301 इज अ बेसिकली परमानेंट रिडायरेक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, 302 इज अ टेम्पोररी रिडायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, ये सर्वर कोड है एक्चुअली। जैसे कि 404 इज अ परमानेंट मींस योर साइज इज नॉट योर पेज इज नॉट अवेलेबल, सो इन दैट केसेस इट विल शो यू द 404 एरर, पेज ही खुल नहीं रहा है, तो उसका कोड आता है, जो सर्वर का रिस्पॉन्स कोड आता है वो 404 रिस्पॉन्स कोड आता है। जब सर्वर का कोई इंटरनल इश्यूज है तो 500 एरर देखना, इंटरनल सर्वर एरर अगर होता है उसका कोड होता है 500। सो दिस इज द टेक्निकल फॉर्म्स, धीरे धीरे आपको वो समझ में आ जाएगा। सो कैनिकल इश्यूज इसमें नहीं है, এই যে ক্যানোনিক্যাল এই যে ইস্যুগুলো বের হচ্ছে এগুলো ডেভেলপার উইল সলভ ইট নাও। যদি আমি নিজে হই তখন আমি কি করব, তখন পার্টিকুলার অ্যাগেন মাস্টার্সে ওটা সেকশনসে থাকে, তাও আমি এটা তোমাকে আমি এটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি টেকনিক্যাল ফর্মে কীভাবে করা হয়। এটার জন্য আমরা একটা ইউজ করি যেটার নাম হচ্ছে .htxs ফাইল। এটা সলভ করতে গেলে যে ক্যানোনিক্যাল ইস্যু সলভ করতে, ক্যানোনিক্যাল ইস্যুস একটা ইম্পর্টেন্ট সেকশনস যেটাকে সলভ করতে হয়। যদি আমার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হয়, শুনলে না, যদি আমার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হয় তাহলে ইটস ভেরি ইজি। হাউ ইজি, জেনারেল সেটিংসে গিয়ে ওখানে একটা তোমার ইউআরএল এর পাথটা www দিয়ে দিলে ও অটোমেটিক HTXS এ ও ওটাকে সলভ করে নেয়, মানে এটা ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। যখন আমার HTML সাইট হয় বা PHP সাইট হয় তখন আমাকে দুভাবে করে সলভ করতে পারি। একটা আমরা সার্ভারের যে cPanel আছে, cPanel একটা 301 পার্মানেন্ট রিডাইরেকশন বলে একটা অপশন থাকে, সেখান থেকে রিডাইরেক্ট করতে পারি। অর এলস যদি কোডিংয়ে যায় তখন কোডিংয়ে .htxs বলে একটা ফাইল থাকে, সেটা থ্রুতে আমাদের अपलोड करता है। These are all in masters अगर हाँ बट मैं वो फाइल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका वो मतलब ये रहे, एंड मेरा वॉइस भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इन दैट केसेस यू विल ऑल्सो अंडरस्टूड कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है। जैसे कि कल मैंने द थिंग आई एम डूइंग, इनफैक्ट जो वीडियोस आ रहा है भाई ये स्टूडेंट लोगों को बहुत हेल्प आ रहा है। लास्ट यस्टरडे बेसिकली I usually take the off early, क्योंकि कल शिवरात्रि था तो मैंने उपवास किया था, तो जैसे 9:30 समय मेरा एक सुमन बोल के हैं जमशेदपुर का, तो दे कॉल सर क्या ऑन पेज ये वो कर रहे हैं, तो इसमें ये है वो है, तो वीडियोस देख के वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट्स मिला वो कर रहा है, सो गेटिंग सम इश्यूज, सो उन्होंने कॉल किया तो सॉल्व हो गया। सो मैं हाँ सर समझ में आ गया, ये करना है वो करना है, तो द वीडियोस इज गिविंग द सम एनलाइटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा HTXS सॉल्व करने के लिए मेरे को अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस का सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जहाँ पे वेबसाइट URL देने का जो जगह है वहाँ पे पर्टिकुलर्स वहाँ पे विद www देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा साइट कस्टम डिज़ाइंस है HTML PHP और SPX में अगर है मतलब .NET में है, तो इन दैट केसेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, सर्वर से रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इज बेसिकली वी कैन गो अहेड टेक द हेल्प फॉर द .htxs फाइल। सो .htxs फाइल थोड़ा टेक्निकल है, तो देखने में कैसा होता है क्या होता है देखने में हाउ इट लुक लाइक वो थोड़ा एक बार दिखा देना है। आई होप यू विल गेट इट, लुक लाइक दिस इज द .htxs फाइल।
कहाँ पे? ये कोडिंग है डॉट एचटीएक्सएस फाइल, एक सिंपल सा डॉट एचटीएक्सएस फाइल लगा दिखा देते हैं। हाँ टेक्निकली इट्स ऐसे टेक्निकल थिंग्स, लुक एट दिस इज अ डॉट एचटीएक्सएस फाइल। तो यहाँ पे देखो ये जो 301 रिडायरेक्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये डब्ल्यू जो दिया है, मतलब वो जो भी उनको मिलेगा, डॉट मीन्स इज अ रूट, रूट के बाद जो भी आएगा वो रिडायरेक्ट करके डब्ल्यू में डालेगा, एंड दैट इज अ 301 परमानेंट रिडायरेक्शंस। अगर उनको कुछ एरर पेज मिल रहा है, 40 एरर पेज ले, तो वो कॉन्टैक्ट अस पेज में वो रिडायरेक्ट करेगा। जैसे कि इनका एरर हो रहा था ना, तो 404 एक पेज आया, तो मैंने मेरा साइट में अगर जाओगे तो जैसे और एरर मिलेगा वो कॉन्टैक्ट अस पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। सो दिस इज द वे यू कैन डू एंड रिडायरेक्ट एंड ऑल। और एक चीज होता है कैनोनिकल का, क्या चीज होता है आपका, लाइक सर्वर में, जब आप सर्वर में फाइल बनता है ना, तो सर्वर में जो बेसिक फाइल रहता है उसको होम डॉट एच टी एम एल, डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऐसे नाम पे वो पीपल्स आर सेव इट, डेवलपर सेव इट, सी एम एस जो होता है वहाँ पे भी सेव होता है, उससे भी डुप्लीकेट हो जाता है। सो वो भी हम लोगों को रूट में डायरेक्ट करना है। जब हम लोग साइट ओपन करते हैं, देखना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन नहीं होता है, बट वो एग्जिस्ट करता है साइट में। इंडेक्स डॉट पी एच पी ओपन नहीं होता, बट वो एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं ओपन करता? क्योंकि कैनिकल इशूज उसमें सॉल्व होता है, तो वो नहीं दिखाता है। ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर बेसिक। सो ये जो फाइल है, इसमें आपको चेंज करके सर्वर में अपलोड कर देंगे तो वही बिहेव करेगा। ठीक है, दिस इज द टेक्निकल फाइल जो डेवलपर लोगों के पास रहता है। दे सम पीपल्स नो, सम पीपल्स डोंट नो। तो अगर डोंट नो तो वो सीख के करेगा, अगर जानता है तो डॉट एच टी एक्सएस फाइल से आराम से कर। डॉट एच टी एक्सएस फाइल इज अ सेंसिटिव फाइल, मीन्स डायरेक्टली या डायरेक्टली हिट विद द सर्वर, इसलिए थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ वो करना पड़ता है। কারণ এই ফাইলটা আবার লিনাক্স সার্ভারে কাজ করবে, উইন্ডোজ সার্ভারে কাজ করবে না। দু ধরনের সার্ভার হয়, লিনাক্স সার্ভার, উইন্ডোজ সার্ভার, শেয়ার সার্ভারের মধ্যে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ বেসিক্যালি আমাদের দেখো টেকনিক্যাল আরও বেসিক কি যাব, আরও বেসিকে যদি যাই, এগুলো 3 পেজ লিঙ্ক, রোবট ডট টিএক্সটি, ডোমেন রেজিস্ট্রেশনস কা, मतलब এগুলো রেজিস্ট্রেশনসের পার্টে যেটা হয় নর্মালি রোবট ডট টিএক্সটি বা ব্লগ যদি না থাকে, যদি ব্লক না থাকে, ব্লগের ব্লক রেকমেন্ডেশনস যদি ব্লক না থাকে, সো এখানে প্লিজ ইনস্টল blog and start posting daily to get more visitors, trust and traffic। ठीक है, सो ये एक लाइन हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। অবশ্যই বুঝতে পারলে? আচ্ছা, নেক্সট समझ में आ रहा है? নেক্সট ইজ বেসিক্যালি মোবাইল ফ্রেন্ডলি। ব্লগ রিকমেন্ডেশন যেটা আছে সেটা ব্লগ যদি না থাকে, সাইটে যদি ব্লগ না থাকে, ব্লগিং সেকশন না থাকে, তাহলে আমরা ওখানে ব্লগ রেকমেন্ডেশনস বলে ব্লগিং রেকমেন্ডেশন করলাম। বুঝতে পারবো ব্লগ সাইটে ব্লগ আছে কিনা তুমি দেখতে পাবে, যে যদি তোমার ব্লগ নামেও থাকতে পারে, আর্টিকেল নামেও থাকতে পারে, বিভিন্ন ফরম্যাটে থাকতে পারে। ব্লগ তো থাকবে কোনো আর্টিকেল, হ্যাঁ, মানে এই যে কোনো ওয়েবসাইটে একটা তো ব্লগ তো থাকবে। নট নেসেসারি সমস্ত এখন রাখছে। এখন তোমাদের অনেক কিছু তোমাদের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে, যে পার্টিকুলার দ্য সাইট ওনার্স বলো আর ডেভেলপার বলো, দে আর মোস্ট নলেজেবল। যেমন ধরো এখানে এটাতে ব্লগ আছে, কিন্তু যদি কেউ ব্লগ খোঁজে সে ব্লগ পাবে না। এখানে ব্লগটাকে নাম দেওয়া আছে নলেজ বলে, হুইচ ইজ ফাইন। ব্লগের নাম ব্লগই থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই। तो लेकिन आम आदमी तो शायद नहीं खोज पाए। हाँ, हो सकता है, that is also true, it depends, but ये blog and the how you know the pay date and things is categories के आकार में वो पोस्ट आ रहा है, तो this is a blog format। आम आदमी की समझने के लिए हाँ, that is basically हो सकता है, but you can do it, टेक्निकली एरर नहीं है। अगर यूजेबिलिटी के बात हम लोग करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस के बात करते हैं, तो वो शायद आपको उसी बेसिस में उसको गाइड करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोग को जो आता है लाइक उसके बाद जो चेंजेस आता है, दैट इज़ बेसिकली जैसे कि मोबाइल का इश्यूज जो भी हम लोग का होता है, जो भी टेक्निकल इश्यूज होता है, टेक्निकल इश्यूज का वो सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद উই জাস্ট পুট দ্য দিস ইজ দ্য বেসিক থিংস। একটা হচ্ছে রোবট ডট টিএক্সটি, যেটা তুমি টেকনিক্যাল ফর্মে করতে পারো, ডট এসটিএক্সএস সাইট ম্যাপ,
এগুলো তুমি করতে পারবে। আর একটা সেকশন ব্লগের, এটা রেকমেন্ডেশনস, এটা আমাদের থাকে। আর বাদ বাকিগুলো টেকনিক্যাল যে সাজেশনস যেগুলো থাকে, এইগুলো নোটসগুলো আমরা এখানে নিচে রেখে দিই। যেমন ওই ব্লগের থেকে যে এরর্সগুলো আসছে, প্লিজ ফিক্স দ্য ইস্যুস, প্লিজ ফিক্স দ্য ইস্যু ফাউন্ড হিয়ার বলে আমরা ওই যে ডকুমেন্টেশন তোমাকে বলেছি যে কপি করে করে রাখতে, সেগুলো তুমি এখানটায় দিয়ে দেবে। অর্থাৎ এখানে তুমি ওটা করেছো কি? হ্যাঁ, না এটা করনি। এই যে জিটি ম্যাট্রিক্স বা এই যে W3C, মানে যেগুলো আমরা জিটি ম্যাট্রিক্স, গুগল স্পিড, চেকার, চেকার টুলস, তারপরে W3C যে ইস্যুসগুলো পেয়েছি সেগুলো এখানে ওই স্ক্রিনশট মেরে উইথ লিঙ্ক আমরা এখানে দিয়ে দিই, যেটা ডেভেলপার গিয়ে ও বসে বসে ওটাকে চেঞ্জ করে। যতটুকু দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য হোল একটা অন পেজ ডকুমেন্টেশনস, যার জন্য পার্টিকুলার একটু বুঝতে পারছো যে একটু টেকনিক্যাল ফর্মস দরকার, একটু টেকনিক্যাল নলেজ দরকার, একটু হালকা, কিন্তু এটা নিয়ে ঘাবড়ানো কিছু নেই বা এটা এমন কোনো আহামরি কিছু নয়, ইটস জাস্ট প্র্যাকটিস। এবং এইটাকে নিয়ে নর্মালি আমরা যে কোম্পানিতে যারা কাজ করে, মানে যারা সিনিয়র থাকে, তার জন্য এই সিনিয়ররাই এটাকে দখল করে রাখে, বিকজ অফ দ্য লিটল বিট টেকনিক্যাল ফর্মেশন, আদার নাথিং এলস। সো এটা প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে তুমি এটা করতে পারো। যখন তুমি ইউ হ্যাভ আ ওয়েবসাইট, ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট অন ইট योर ओन, so there is no problem at all, ठीक है? या मास्टर्स कर लो। नो नो, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी। इस बेसिकली आप किसी के चीज़ का पर अगर अगर फुल डेप्थ आपको चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम से अगर नहीं जानते तो भाई मेरे को यहाँ पे क्या, मेरे को खर्चा जाएगा। अगर 10 एजुकेशन क्यों ज़रूरत होता है? इस बेसिकली काइंड ऑफ लाइक अगर नहीं होता है, अब मेरे को बहुत कुछ आता है, नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग्स मेरे को आएगा, तो ये नहीं आएगा तो आई विल आउटसोर्स इट टू द पीपल्स। बट वो अगर सोच लेते हो कि अगर आउटसोर्स करते हैं तो ये करने के लिए कम से कम आपको तो $50 to $100 तो मिनिमम आएगा। 6,000 इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट नाउ, सो 6,000 से अगर जाता है तो अगर 10% कितना जा रहा है, इससे बेटर सीख लो। सो दैट इज द पॉइंट। मैंने इन ओवरऑल में एक साल में अगर 10 प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर 6,000 करके मैं दे रहा हूँ बंदा को, सो इट्स 60,000 रुपीज़। मैं तो वही बोलूंगा। दैट इज जैसे कि नॉलेज वाइज, जैसे कि मैं एक कोर्स में आपके साथ शेयर किया था, कर रहा हूँ, एडमिशन ले रहा हूँ मार्च से, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी। सो आई फाउंड दैट कोर्स इज बेसिकली व्हाट मेरा थोड़ा काम में आएगा इन फ्यूचर, नॉट द करेंटली। सो आई थॉट कि उससे मेरे को कमाएगा, तो आई ऑलवेज टेक द अपग्रेडेशंस, आई टेक द ट्रेनिंग, आई इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग। ऑनलाइन में बहुत सारा ट्रेनिंग मैं करता हूँ, पेड ट्रेनिंग। सो इन दैट केसेस आई गेट द अपडेट ऑन दैट, सो उसी वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं जो जानता हूँ वही चला के पुराना स्टाइल में चलेगा, तो दैट इज़ नॉट हैपन। तो दैट इज लॉट ऑफ टूल्स आई परचेस, क्योंकि मैं परचेस करता हूँ तो वो इम्प्लीमेंट करके मेरे को कमाया आ जाता है। अगर मेरा सीधा सीधा हिसाब, जैसे कि मैं उनको जिस दिन बोल रहा था कि विद्युत जी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पैसा तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? तो इस बेसिकली वहाँ से जो करेंगे उससे तो एटलीस्ट 10 टाइम्स तो मैं वहाँ पे, तो इस लाइक अ म्यूचुअल फंड। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड, लोग पहले क्या बोलता था, पहले बोलता था कि भाई करो, एक साल में देखोगे फ़ायदा आएगा। ভালো করে ভেবে দেখো, তুমি যদি আজ থেকে 6-7 বছর আগের কথা বলছি, 10 বছর আগের কথাও যদি হয়, তখন এইটা এইভাবে করে দেখা হতো। নাও যত দিন যাচ্ছে, যত মার্কেট সিনারিও, ফিনান্সিয়াল সিনারিওস কমপ্লিকেট হচ্ছে, তখন প্রত্যেক মিউচুয়াল ফান্ডের কী বলছে যে ইউ হ্যাভ টু টেক ইট एज अ इन्वेस्टमेंट, लाइक सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर भी खरीदो तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, इमीडिएटली के लिए मत खरीदो, बट दैट इज द टाइम ना लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट आएगा। सो इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। because I have shown you the things। अगर मायने में अगर मेरा 10 to whatever the sales or things and all, अगर 10 to भी hosting sale आता है, तो I usually earn more than 60,000 rupees straight away, there is a no shock, आराम से। तो fine, fantastic,
सारा महीने में 10 सेल तो आना ही है, तो दैट इज़ अ वे वी डू, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ऑन पेज का डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगा एंड कैसे होगा। तो দিস ইজ দ্য ফুল ফরমেশনস ওয়ে অফ দ্য ডকুমেন্টেশনস। এবার এটাকে তোমার সাইটে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এই সেকশনসের জন্য এই সেকশনসের জন্য এখানে কিছু কিছু সেকশনস তোমার থাকবে যে একদম কোর ডেভেলপার ডিজাইনাররা ছাড়া হবে না। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এখানে এই জিনিসটা আবার এমনও হয় আমরা একটু দুষ্টুমি করি এখানটায়। কি দুষ্টুমি করি আমরা, এটা জানি যে টেকনিক্যালি যখন একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট করবে না, ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে যে প্লাগইনস ইউজ করছো ফুল কন্ট্রোল প্লাগইনসের উপর তোমার থাকে না। প্লাগইনস ইজ এ থার্ড পার্টি পিপলস, ইউ আর ইনস্টলিং বিকজ ইউ আর গেটিং বেনিফিট। এবার ওর কোডে তো তোমাকে হাত দিতে হবে, ও ফাংশনটা ইউজ করতে হবে, ও কোডটাই হাত দিতে পারে, কোডে হাত দিলে ও তোমার সাইট কোলাপস করে দেবে। তো প্লাগইনসের থ্রুতে অনেকগুলো ইস্যুস আসে যেগুলো পার্টিকুলার আমরা ডাইরেক্টলি সলভ করতে পারি না, কিন্তু ডেভেলপারকে উপরে চাপিয়ে দিই। সেটা আমরা ফায়দা নিয়ে এসিও যারা কনসালটেন্ট থাকে যে তুমি সলভ করো, সাইট তো আমি ডেভেলপ করিনি, নিজে ডেভেলপ করলে এটা একটা মানে কষ্টে পড়তে হয়। তো আদারওয়াইজ বেসিক্যালি আমরা ক্লায়েন্টকে বলতে লুক উই হ্যাভ গিভেন দ্য ইনস্ট্রাকশনস, ইফ ইউ আর নট মেনটেনিং দিস থিংস হোয়াট আই ক্যান ডু, আই এম ডুইং ইট গুড, লুক মাই লিঙ্ক বিল্ডিং ইজ প্রসেস ইজ ডুইং গুড অ্যান্ড দ্য রেজাল্টস ইজ কামিং আপ, ইটস নট কামিং ফাস্ট বিকজ ইউর সাইজ ইজ নট 100% fit for the search engine crawler, which is true in other sense it's true, বাট জানো যে পিয়ুষ আমি তুমি তিনজনে যদি বসে থাকি, বেস্ট পার্সন বলে কেউ হয় না, মানে বেস্টের কোনো ইয়ে হয় না, মানে সংজ্ঞা হয় না। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু ভালো কিছু খারাপ কিছু মিডিয়াম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের থাকবে। তো একদম নিখাত সেটা কিন্তু হয় না। তো কিন্তু এগুলো টেকনিক্যাল আমরা ধরে দিই কারণ কি জাস্ট ক্লায়েন্টকে পার্টিকুলার একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য। সেকেন্ড ইজ বেসিক্যালি কিছুটা অ্যাডভান্টেজ আমরা এখান থেকে নিই, এবং যদি একদম ফুলফিল 100% না হয় তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অনেক টেকনিক্যাল পারসনস বা এটা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ দেবে, কিন্তু আই ডু ফিল চাঁদের যেরকম কলঙ্ক আছে সাইটেরও কিছু কিছু ইস্যুস থাকবে। সো এবং সেইটা থাকাটাই স্বাভাবিক। ইফ ইউ আর ডুইং ইট 100% কারেক্ট, so it's a something suspicious, something suspicious, something ওটা তো প্রবলেম, মেজর প্রবলেম। দেখনা बहुत अच्छा बहुत সুন্দর দেখনে बहुत সুন্দর है बहुत, যেমন ধরো সুস্মিতা সেনের বিয়েই হলো না, মিস ইউনিভার্স ঐশ্বর্য রায়ের থেকে ওর ক্যাটাগরি অনেক বেশি, 156টা দেশের সুন্দরী, সে বিয়ে করতে পারলো না। সালমান খান ওয়ার্ল্ডের 10 জনের সুন্দর পুরুষের মধ্যে মনে হয় 5 or 6 এ রয়েছে, তার বিয়ে হলো না। মানে আই এম জাস্ট গিভিং এ এক্সাম্পল, ইটস জাস্ট থিংস। খুব ভালো সেটাও আবার খারাপ। সো মেক ইট আ ব্যালেন্স, রাইট? সো আই হোপ ইউ এনজয় দিস থিংস অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক ইট, রাইট? আই এম স্টপিং দিস ভিডিওস ফর দ্য ফার্দার